Good morning, students. In order to revision of our science, we are going to discuss today a chapter that is the fiber and fabrics. You know well the various kind of the clothes we wear, textiles, cotton clothes, nylon clothes, polyester, acrylic, different kind of clothes we wear. These all are made up by the small fibers. So, what is a fiber? Long, thin, long, thread-like structure. Thin, long, thread-like structure. Thin, long, thread-like structures which are used to form fabrics. The thin, long, thread-like structures या filament-like structures, thread-like structures which are used to make fabrics, known as fibers. The बच्चों the fibers, ये फाइबर का टाइप. The fibers can be obtained from the natural way or can be synthesized in the factories. On this basis, we classify the fiber into two categories. This is fiber. Fiber classified into two categories. Number one, natural fiber. Second one, artificial कर दूं. आर्टिफिशियल कर दीजिए या मैन मेड कर दीजिए, मैन मेड, और यू कैन यूज सिंथेटिक फाइबर्स. तो फाइबर में बी ऑफ नेचुरल फाइबर्स और में बी सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स, दी फाइबर्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी plants and animals. The fibers which obtained from the plants and animals are known as natural fibers. The fibers obtained from the plants, plant fibers. The fiber that obtained from the animals, animal fibers. Plant fibers, animal fibers. Now look. Plant fiber example: cotton, jute, sun, hemp. Cotton, jute, sun, hemp. These kind of the fibers, these fibers are the plant fibers because they obtain from the plants or vegetation. These are also known as vegetative fibers. या vegetable fibers. These are vegetative fibers या vegetable fibers. हो गया? वेजिटेटिव कर दो या वेजिटेबल कर दो, एक ही बात. ये वेजिटेबल फाइबर हो गया. अब बच्चों, these are vegetable fibers. एनिमल है तो एनिमल फाइबर्स, silk and wool. Wool and silk are the examples of animal fiber. Wool and silk are example of animal fiber. These are examples of the plant fibers. Now, synthetic fibers. Synthetic fibers example
नंबर 1 एग्जांपल नाइलॉन, पॉलीएस्टर, नाइलॉन फाइबर्स, पॉलीएस्टर फाइबर्स, acrylic fibers, right? These are the different kind of fibers. Got it? Now, after discussion of such kind of the fibers, we are going to discuss why do we need the synthetic fibers. Why do we need the सिंथेटिक फाइबर्स? नेचुरल फाइबर्स हमारे पास इतने अच्छे फाइबर्स हैं, फिर भी हमको इन सिंथेटिक फाइबर्स की फैक्ट्रीज में बनाने की कहां जरूरत पड़ी? सो लुक ओवर हियर. एक्चुअली सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, डिजायरेबल क्वांटिटी. तो याद रखते हैं एडवांटेजेस का दो या प्रॉपर्टीज का दो, एक ही बात है. एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. दे कैन बी synthesized. They can be synthesized in desired quantities. Synthesized in desired quantity. एक्चुअली यो समझें, हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनको जितना चाहिए उतना बना सकते हैं हम. नेचुरल फाइबर प्लांट्स होंगे, ग्रो होगी, फसल पकेगी, फिर जब चाहेंगे जितना चाहेंगे उतना तो नहीं बना पाएंगे ना. एक पर्टिकुलर लिमिट है. क्रॉप होगी नहीं होगी वो अलग बात है. तो बच्चों दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी. जितनी भी चाहिए उतना बना देंगे. सेकंड वन, सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेसाइज्ड इन फैक्ट्रीज. They are synthesized in factories. They are synthesized in factories. हो गया? Next one. These are synthesized from the chemicals. These are synthesized from the chemicals. Synthesized from chemicals. From chemicals. अब बच्चों ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स आते कहां से? हमारे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम निकालते हैं, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो ही यहां पर यूज होते हैं. तो यहां लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, सोर्स क्या है इनका? पेट्रोकेमिकल्स. These are synthesized from the petrochemicals. Next point. इनको वॉश करना बहुत आसान है, इजीली वॉश हो जाता है, क्योंकि इससे इन पे चिकनाई वगैरह जो तो चिपकती नहीं है. इजी टू वॉश. ध्यान लिख लेते हैं, इजी टू वॉश. Next one, they do not absorb the water. They do not absorb the water. और पानी को एब्जॉर्ब करते नहीं तो जल्दी से सूख जाता है. They do not absorb water, so dry up quickly. जैसे धोया जल्दी से सूख गया. यही तो हमको चाहिए, जल्दी से सूख जाए.
ज्यादा टाइम ना ले। नेक्स्ट बच्चों, जब भी मैं कॉटन का कुर्ता पजामा पहनता हूं तो उसके पहले मुझे बहुत उसकी प्रेस करनी पड़ती, आयरन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिंकल्स हो जाते हैं। लेकिन हमारे इन शर्ट्स वगैरह में रिंकल्स होते ही नहीं या बहुत कम रिंकल्स होते हैं। यहां लिख देते हैं डू नॉट गेट रिंकल्स, या रिंकल रेसिस्टेंट कर सकते हैं। यहां लिख देते हैं रिंकल रेसिस्टेंट, रिंकल रेसिस्टेंट। और जब रिंकल रेसिस्टेंट है तो हमको इनको बहुत ज्यादा आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजी टू हैंडल, क्या कहेंगे? इजी टू कैरी, इजी टू हैंडल। हो गया। नेक्स्ट वन, they do not attacked by the insects, do not attacked by insects। they do not attacked by insects इन पर अटैक करते नहीं, क्योंकि ये नेचुरल होते नहीं। नेचुरल नहीं होते तो इंसेक्ट इनके ऊपर अटैक नहीं करते। डू नॉट अटैक बाय द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट वन बच्चों, पहले कपड़े, सूती के कपड़े जो कॉटन क्लोथ होते थे वो हर साल हमको नए सिलवाने पड़ते थे। लेकिन अभी तो कंडीशन ये है 10 साल पहले, 15 साल पहले जो कपड़े सिलवाए होंगे वही कपड़े अब तक हम लोग पहन रहे हैं, यूज करते रहते हैं। तो क्या हो गया? मोर ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग। दीज क्लोथ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक क्लोथ्स आर लॉन्ग लास्टिंग, खराब होते ही नहीं। नेक्स्ट वन, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कटेगा फटेगा नहीं। वाई? बिकॉज दीज आर मोर स्ट्रोंगर देन दी natural fibers, more stronger than natural fibers। काफी मजबूत होता है नेचुरल फाइबर्स, ये काफी मजबूत होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग को हम लोग ड्यूरेबल भी कह सकते हैं, ड्यूरेबल। तो बच्चों ये थे हमारे एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो दे कैन बी सिंथेसाइज्ड इजीली इन डिजायर्ड क्वांटिटी इन फैक्ट्रीज, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फैक्ट्री इन फैक्ट्रीज, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द केमिकल्स लाइक द पेट्रोकेमिकल्स, easy to wash, do not absorb water, so dry up easily, dry up quickly, wrinkle resistant, so they do not need the ironing, do not attacked by the insects, do long lasting, more durable, long, more stronger। अब बच्चों ये तो हो गई इनकी कैरेक्टर, इनकी एडवांटेजेस। कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक ही इनके खिलाफ हो जाती है, तो देखिए नेक्स्ट, they catch fire easily, they catch fire easily, because they catch fire easily, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। That's why we can't wear them in the kitchen, we should not wear them in kitchen। जब किचन का काम कर रहे हो तो हमें इनको पहन के काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। पटाखे भी नहीं चलाने चाहिए। एट द टाइम ऑफ क्रैकर वी यूज दिस वन फायर क्रैकर्स, तो इनको पहन के नहीं करना चाहिए। कॉटन क्लोथ हम लोग पहने। नेक्स्ट वन, these are non biodegradable, these are non biodegradable, यही इनकी एक ड्रॉबैक हो जाता है, ये खराब ही नहीं होते। डू नॉट अटैक्ड बाय द इंसेक्ट्स, डू नॉट डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया,
फंगस, यही इनका डिसएडवांटेज होता है। तो खराब नहीं होगा तो दे में कोज दी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो दे कोज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, दे में कोज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। हो गया। नेक्स्ट वन, they do not absorb water, they do not absorb water, so they में अगर गर्मी के टाइम पर हम लोग इनको पहन नहीं सकते, क्यों? क्योंकि गर्मी के टाइम में ऐसे कपड़े चाहिए जो हमारा पसीना एब्जॉर्व कर ले, ये पसीना एब्जॉर्व करते नहीं, तो इनसे क्या होता है, दे डू नॉट एब्जॉर्ब द स्वेट ऑल्सो, हमारे पसीने को एब्जॉर्व नहीं करेंगे, और जब पसीना एब्जॉर्व नहीं करेंगे तो इट में कोज एलर्जिक प्रॉब्लम्स, दे do not absorb, they do not absorb sweat, so they may cause skin problems और एलर्जी। अगर हम इनको कंटिन्यू गर्मी के टाइम में पहनेंगे तो ये स्किन प्रॉब्लम्स और हमें एलर्जी हो जाती है। दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसीलिए हम लोग प्योर सिंथेटिक फाइबर यूज करने की बजाय क्या करते हैं, मिक्स अप यूज करते हैं, सिंथेटिक प्लस कॉटन उसके अंदर मिक्स कर दिया करते हैं। थैंक यू।